Hello, students. Let's discuss the exercise of our first chapter, A Letter to God. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence of the story tell you this? Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problem. There are few sentences which show this. कौन कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे एक्सरसाइज में, हमारे चैप्टर में, जो ये बताते हैं? देखिए यहाँ पे है, बट इन द हार्ट ऑफ दोज who live in that solitary house in the middle of valley there is only a single hope, help from God. पहले तो ये सेंटेंस है. फिर नेक्स्ट है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड whose eyes has he had been instructed. ये सेकेंड है. और फिर देन God, he wrote, if you don't help me and my family, I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope and put the letter inside. ये सारे जो लाइंस हैं ये क्या बताते हैं कि he has complete faith in God. The next question is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? The postmaster sent money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. When postman reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. Next question है आपका, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him, other than God, who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. Next question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An irony situation is strange or as amusing because it is the opposite of what is expected. Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money. लेंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो पैसे थे वो ले लिए आधे. As he had demanded 100 peso from God and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake, so he assumes that they had stolen the money. The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. Are there people like Lencho in the real world? What kind of people would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. Greedy, knave, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. It is almost impossible to find a person like Lencho as he is an unquestioning and knave kind of person.
He is not stupid if he does not know what he has sent him, who has sent him money, or a letter will reach God without any address. It is Lencho's faith in God. In real world, people are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. There are two kinds of conflict in the story: between humans and nature, and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? फर्स्ट है आपका कि ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है. कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstones, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. Now, second is conflict between humans and humans. The story also illustrates another conflict between humans themselves, as a postmaster, along with his friend and staff, sent Lencho money that Lencho demanded from God. Although they didn't know Lencho, Lencho blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to this conflict. Now, next is thinking about language. Look at the following sentences from the story. Suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall in a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder, and lightning. There are different meaning in different part of the world of storms depending on their nature. You can match the name in the box with their description below and fill the blanks. You may use a dictionary to help you. जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के स्टॉर्म्स, अलग अलग तरह का तूफान आता है. यहाँ पे कुछ तरह के तूफानों के नाम दिए हैं, आपको फिल करना है ब्लैंक्स इन्हें यूज़ करके. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल. Cyclone. First one is cyclone. An extreme strong wind. Extreme strong wind के आपका second है gale. A violent tropical storm with very strong winds. Typhoon. A violent strong storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. Tornado. A violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. Hurricane. Last one is a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and cause a lot of damage. Whirlwind. Okay. Note how the word hope is used in these sentences from the story. I hope it passes quickly. इस सेंटेंस में होप क्या एक उम्मीद की जा रही है कि हेल स्टोन्स जो थे, हेल स्टॉर्म जो आया था, ओले जो पड़ रहे थे वो जल्दी खत्म हो जाए. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. पहले वाले में जो होप है वो क्या है, वो उम्मीद की जा रही है कि ऐसा होगा. और सेकंड वाले में जो होप है वो क्या है, दैट इज नाउन. फर्स्ट वाले में जो होप है इट्स अ वर्ब है क्योंकि एक उम्मीद लगाई जा रही है. इट्स हैपनिंग. In the first example, hope is verb, which means you wish for something to happen. आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो. And in second example, it is a noun, meaning a chance of something to happen. ऐसा chance है कि ऐसा हो सकता है. Match the sentences is column A with a meaning of hope
इन कॉलम बी, आपको मैच करने हैं सेंटेंसेस कॉलम ए के और कॉलम बी के. विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वॉन्ट टू स्टडी इन कॉलेज? क्या तुम्हें वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो तुम कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? आई होप सो, इसमें क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि आई होप सो, कि ऐसा ही हो. एंड हम बी पार्ट में देखते हैं कौन सा इससे मैच करता है. फर्स्ट है फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन. तो ये अच्छी वाली फीलिंग, गुड फीलिंग तो नहीं है. थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ऐसा सोच रहे कि ऐसा काश हो. तो या फर्स्ट का ऑप्शन बी है. फर्स्ट का क्या है, सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच है. I hope you don't mind my saying this, but I don't like the way you are arguing. सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें उम्मीद की जा रही है कि सामने वाले को बुरा ना लगे. I hope you don't mind my saying, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा. बट I don't like the way you are arguing, पर मुझे ये तरीका पसंद नहीं है जिस तरह से तुम बहस कर रहे हो. ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं. स्टॉप बिलीविंग दैट दिस इज गुड थिंग वुड हैपन, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, showing concern that what you say would not offend or disturb the other person, a way of being polite. Yeah, this option is correct, a way of being polite. ठीक है, कि आप कंसर्न दिखा रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें बुरा ना लगे, डिस्टर्ब ना करे. दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप ऑफ HIV AIDS सफरर्स. ये जो थर्ड सेंटेंस में होप है वो क्या, एक उम्मीद है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद. तो ये अच्छा होने की कुछ उम्मीद जो थी, क्या थी वो, फर्स्ट था. फीलिंग ऑफ समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन. द नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक. तो जो उम्मीद है, मतलब जो होने के चांसेस है, उसके अपोजिट में होप किया जा रहा है. विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज अनलाइकली, होने की उम्मीद बहुत कम है पर फिर भी होप कर रहे हैं. तो फोर्थ का लास्ट ऑप्शन के साथ मैच है. ओके, देन फिफ्थ, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल. ये उम्मीद कर रहा है कि वो उससे मिल ले स्कूल जाने से पहले. तो ये इस ऑप्शन के साथ मैच करेगा. वांटिंग समथिंग टू हैपन, आप ऐसा उम्मीद करें कि ऐसा हो. एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, आप उम्मीद करें कि ऐसा हो सकता है. जस्ट व्हेन एवरीबडी हैज़ गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब वो वापस आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद का पूरा हो जाना, जो जिस चीज़ में लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं वो चीज़ पूरी हो गई. स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, हाँ ये इसके साथ मैच करेगा. सो दिस इज डन. देन नेक्स्ट इज रिलेटिव क्लॉज. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ऑल मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फ्रेंड intimately, looked at the sky. Fields intimately looked at the sky. इसमें रिलेटिव. नेक्स्ट सेंटेंसेस, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड yes God willingly. The italicized part of the sentences give us more information about Lenchos and the woman. We call them relative clauses. रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं, जो किसी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे. जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस ए देखिए, उसमें क्या है, ऑल मॉर्निंग लेंचो. ये अगर ये जो सेंटेंस है उसके बाद हु न्यू हिज फील्ड्स इमिडिएटली नहीं रहता तो क्या होता, ऑल मॉर्निंग लेंचो लुक्ड एट द स्काई. पूरे दिन लेंचो आसमान की तरफ देखता रहता है. बट ये जो बीच में सेंटेंस है हु न्यू हिज फील्ड इमिडिएटली, वो क्या इंटीमेटली, वो क्या कर रहा है, आपको लेंचो के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, ज़्यादा बातें बता रहा है कि
पूरे दिन लेंचो, जो कि अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से जानता था, आसमान की तरफ देखता रहता था। तो हु न्यू हिज, लेंचो के बारे में बताया जा रहा है कि लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? लेंचो के लिए। इस सेंटेंस में ये जो हु है वो कौन है? लेंचो। कौन जानता था अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरह से? लेंचो। तो अगर आप हु की जगह पे लेंचो लिखते हैं, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। द वुमन, अगर हम ये बीच का सेंटेंस हटा दें तो ये सेंटेंस ऐसा होता है, द वुमन रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। पर ये जो सेंटेंस है, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमन जो कि खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया क्या? हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। तो ये जो हु है यहाँ पे, ये किसके लिए यूज हुआ है? वुमन के लिए। वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, खाना कौन बना रही थी? वुमन बना रही थी। तो ये वुमन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस वुमन ने जवाब दिया जो कि खाना बना रही थी। वुमन के बारे में वो अलग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वुमन क्या कर रही थी उस वक्त जवाब देते के टाइम पे? खाना बना रही थी। नोटिस दैट दे बिगनिंग विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन। आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेज हैं, रिलेटिव क्लॉज वाले सेंटेंसेज, ये किस चीज़ से शुरू होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? हु, विच, हुज, हुम, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इस दोनों सेंटेंस में हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। The relative clauses in A and B above are called non-defining. इस दोनों सेंटेंस में A और B में जो रिलेटिव क्लॉज हैं ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब। क्योंकि हम लोगों को ये नॉन डिफाइनिंग इसलिए है क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेज में जो ये हु यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है ये हमें पता है। फर्स्ट सेंटेंस में लेंचो के लिए यूज हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में उसकी वाइफ, उसकी वुमन के लिए यूज हुआ है। तो लेंचो इज द पर्टिकुलर पर्सन एंड देयर इज अ पर्टिकुलर वुमन ही स्पीक्स टू। We don't need the information in the relative clause to pick these people out from a larger set. इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी लार्जर सेट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की। हमें यहाँ पे पता है, हमें सेंटेंस देखकर पता चल रहा है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं किसके लिए यूज हुए? लेंचो और वुमन के लिए। तो यहाँ पे जो रिलेटिव क्लॉज है वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग है। A non-defining relative clause usually has a comma in front of it. नॉन डिफाइनिंग जो क्लॉज होते हैं उनके आगे यूजुअली क्या होता है? कॉमा होता है इन फ्रंट ऑफ इट एंड अ कॉमा आफ्टर इट, और उसके बाद भी कॉमा होता है। सम राइटर्स यूज अ डैश इंस्टीड, और कुछ राइटर क्या यूज करते हैं? डैश यूज करते हैं एज इन द स्टोरी, जैसा कि इस स्टोरी में यूज किया गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में ये आपका रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस, इसके आगे भी डैश यूज किया गया, इसके पीछे भी डैश यूज किया गया। आप देख सकते हैं सेकेंड सेंटेंस में ये रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है, इसके आगे भी कॉमा है और पीछे भी कॉमा है। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के आगे और पीछे दोनों कॉमाज होते हैं या डैश यूज किया जाता है। ठीक है। इफ द रिलेटिव क्लॉज कम्स एट द एंड वी जस्ट पुट अ फुल स्टॉप। जैसे कि इस सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज कहाँ है? बीच में आया है, इसीलिए कॉमा या फिर डैश यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस लास्ट में आता है तो वी जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, तो हम उसके बाद एक सिर्फ फुल स्टॉप देते हैं। ओके। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एज सजेस्टेड। ये हुम, हुज, हुज, विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज किए जाएं। अब जैसा कि आप देख सकते थे ऊपर वाले सेंटेंस में हु किसके लिए यूज किया गया था? हु यूज किया गया था लेंचो के लिए। यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम हु नहीं लिखते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में हु नहीं लिखते तो क्या लिख सकते थे? वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। तो यहाँ पे जो हु यूज हुआ है लेंचो के लिए हुआ, यहाँ जो हु यूज हुआ है वो वुमन के लिए हुआ है। तो प्रोनाउन
वो वर्ड होता है जो कि किसी नाउन के लिए यूज हो। जैसे अगर मैं कहूं कि सीता इज प्लेइंग, अब इसके आगे हम सीता के बारे में कुछ कहते हैं तो हम अगर बार बार सीता सीता यूज करेंगे, सीता इज प्लेइंग, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज वेरी स्मार्ट, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हमें सेंटेंस में बार बार सीता सीता यूज करना पड़ेगा, रिपीट होगा वो, सुपरफ्लुअस रिपीटेशन हो जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, सीता के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सीता इज प्लेइंग, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज हार्ड वर्किंग। तो ये जो शी यूज कर रहे हैं वो शी किसके लिए यूज करते हैं, सीता के लिए। तो किसी भी नाउन के लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है। तो इसी तरह यहाँ पे हमें इन सारे सेंटेंस में ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन को डालना है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इस सेंटेंस में पहले कहा कि मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, फिर मुंबई के बारे में कुछ बता रहे हैं और लिख रहे हैं मुंबई इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है, कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का। ठीक है, तो हम यहाँ से इस सेंटेंस में मुंबई फिर से लिखने की जरूरत ना पड़े तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, विच लिख सकते हैं, विच। यहाँ पे दे रखा है विच से रिप्लेस करना है, इस मुंबई को विच से रिप्लेस कर देंगे तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑफ कुकिंग। मेरी माँ क्या कर रही है, टीवी शो ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है कुकिंग के लिए। शी कुक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर शी की जगह पे ये शी किसके लिए यूज हुआ है, माई मदर के लिए, मदर के लिए यूज हुआ है शी। अगर शी को हम रिप्लेस कर देते हैं हु से तो ये सेंटेंस क्या होगा, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग हु कुक्स वेरी वेल, जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। ये जो सारे स्पोर्ट्स पर्सन है ये किसको मिलने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को मिलने जा रहे हैं। देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सलेंट, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। तो ये देयर किसके लिए यूज हुआ है, देयर यूज हुआ है स्पोर्ट पर्सन के लिए। अगर इसकी जगह पे हम हुज डाल दें तो क्या होगा, दीज स्पोर्ट पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट whose performance has been excellent, जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है। लेंचो prayed to God, his eyes see into our minds। लेंचो किससे प्रे कर रहा है, गॉड से। और ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, भगवान के लिए, गॉड के लिए, जिनके आंखें हमारे दिमाग के अंदर देख सकती हैं। तो हम इस सेंटेंस को हुज से रिप्लेस करते हैं हिज को। कैसे लिखेंगे, लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। द मैन चीटेड मी, उस आदमी ने मुझे चीट किया। आई ट्रस्टेड हिम, आई किसके लिए, आई ट्रस्टेड हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है, उस मैन के लिए। नहीं ऐसे, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम, आई किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, मेरे लिए। उस इंसान ने मुझे चीट किया, मैंने उस पर विश्वास किया था। तो सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, द मैन चीटेड मी whom, सॉरी, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम। हिम किसके लिए यूज हुआ है, उस आदमी के लिए, हिम यूज हुआ है फॉर दैट मैन। अगर हम हिम को रिप्लेस करते हैं whom से तो दिस सेंटेंस विल चेंज इन द मैन चीटेड मी I trusted whom. Okay? Sometimes the relative pronoun in a relative clause remains hidden. कभी कभी relative pronoun में relative clause जो होते हैं वो क्या होते हैं, hidden होते हैं, छुपे हुए होते हैं. For example, look at the first sentence in the story. आप first sentence देखिए story का. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. We can write this sentence as the house, which was the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. In A, the relative pronoun which and the verb was not present. Which और was क्या था, present नहीं था.
कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, छुपे होते हैं। यहाँ पे द को रिप्लेस करके इन लोगों ने क्या डाल दिया, रिप्लेस करके नहीं डाला, इसके आगे डाल दिया विच वॉज जो था, क्या था, छिपा था, हिडन था। मतलब मीनिंग दोनों सेंटेंस के सेम रह गए। अगर आप यहाँ पे विच वॉज भी डाल दोगे तो भी, और नहीं भी रहेगा तो भी मीनिंग सेम है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग नेगेटिव in A, the relative using negatives of emphasis. We know that sentences which with words such as no, not or nothing show the absence of something. जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नो, नथिंग, नॉट, ये सारे क्या दिखाते हैं, किसी चीज़ का नहीं होना, किसी चीज़ का नेगेटिव, किसी चीज़ को निगेट करना, किसी चीज़ के लिए ना कहना या किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनका अपोजिट चीज़ कहना, उल्टा कहना। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स। तो नो कॉर्न्स मतलब कॉर्न क्या है, नहीं होगा। तो कॉर्न क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे क्या शो करे, कॉर्न विल बी एब्सेंट। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये कुछ भी क्या नहीं छोड़ा, एब्सेंस ऑफ क्रॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो नथिंग का मतलब है लेफ्ट नथिंग, मतलब कोई भी फसल नहीं बचेगी। देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, आकाश से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे थे। दे वर लाइक कॉइन्स, वो सिक्के थे। आर नॉट का फुल, आरंट का फुल फॉर्म क्या होता है, आर नॉट का एब्रिविएटेड फॉर्म है आरंट। तो हर जगह पे यहाँ पे क्या है, नॉट यूज हो रहा है, नथिंग यूज हो रहा है, नो यूज हो रहा है। ओके, बट sometimes negative words are used just to emphasize an idea. Look at these sentences from the story. Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast. He had done, मतलब कह तो रहे नथिंग एल्स, मगर ये बता रहा है कि उसने सिर्फ यही किया। क्या किया, कि सिर्फ उसने कुछ और नहीं किया, सिर्फ आकाश की तरफ देखा। और सेंटेंस का मतलब क्या है, कि सिर्फ उसने एक ही काम किया है, आकाश की तरफ देखा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ही हैड ओनली दिस रीजन। नो अदर रीजन का मतलब क्या है, कि कोई और कारण नहीं था, सिर्फ एक ही कारण था कि वो बाहर बारिश का मजा लेने गया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, मतलब उसने वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। नाउ लुक बैक एट एग्जाम्पल सी, नोटिस द कॉन्ट्राडिक्शन। फैक्ट serves to emphasize the value of usefulness of rain to the farmer. Find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. The trees lost all their leaves. पेड़ ने अपने सारे पत्ते क्या किए, खो दिए। इसका आपको स्टोरी में सेंटेंस ढूंढना है। Not a leaf remained on the trees. पेज नंबर 4 पे जाइए आप। पेज नंबर 4 में देखिए, यहाँ है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। ये क्या है, सेंटेंस का नेगेटिव है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। इसका नेगेटिव क्या है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 5। देखिए यहाँ पे है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू द गॉड। देन नेक्स्ट इज, the postman saw this address for the first time in his career. Never in his career as a postman had
he known that address? पेज नंबर 5 में है ये भी. देखिए यहाँ है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. ओके, सो नेक्स्ट इज मेटाफर. To the word metaphor comes from a Greek word meaning transfer. Metaphors compare two things or ideas. मेटाफर क्या करता है, दो चीज़ों को कंपेयर करता है या दो सोच को कंपेयर करता है. अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग. दोनों की क्वालिटी को, दो अलग चीज़ों की क्वालिटी को क्या करता है, मैच करता है, सिमिलैरिटीज देखता है उसमें. ठीक है. सब कॉमन मेटाफर्स आर द लेग ऑफ द टेबल. लेग क्या है, एक सपोर्ट करने वाली चीज है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है. द लेग सपोर्ट्स आवर बॉडी. सो जो ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स द टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज लेग. क्योंकि जो हम लोग कहते हैं कि टेबल के पैर, तो टेबल के पैर तो होते नहीं ना, पैर तो इंसानों के होते हैं, मगर हम लोग टेबल का जो सपोर्ट होता है उसको हम लोग पैर की तरह कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंसानों की बॉडी का जो सपोर्ट होता है वो कौन होता है, पैर होता है. द हार्ट ऑफ द सिटी. शहर का दिल, शहर का दिल नहीं हो सकता ना, इंसानों का हार्ट होता है. बट दैट हार्ट इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. आवर बॉडी इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इसीलिए जो सिटी का मेन एरिया होता है उसको हार्ट से कंपेयर किया गया है. सेंट्रल एरिया होता है उसको हार्ट से कंपेयर किया गया है. अब आप देखिए नीचे कुछ सेंटेंस में, पेयर फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो. ट्राई टू से दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग कंपेयर्ड वन हैज बीइंग डन फॉर यू. पहला तो पहले से लिखा है आपका क्लाउड. क्लाउड को किस चीज से कंपेयर किया गया, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड. माउंटेन्स से क्लाउड के साइज को, उसके ह्यूजनेस को. क्वालिटी और फीचर कंपेयर्ड, क्या क्वालिटी कंपेयर की गई है, उसके साइज को, उसके ह्यूजनेस को माउंटेन से कंपेयर किया गया, उसके मास को. अब आपका सेकेंड है रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स को किस चीज से कंपेयर किया गया है, रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया गया है. तो आप क्या लिखेंगे, मेटाफर वाले ब्लॉक में कॉइन्स लिखेंगे. COINS, कॉइन्स. कॉइन से कंपेयर किया गया. कॉइन से क्या कंपेयर किया गया, उसका मनी दैट अ क्रॉप विल ब्रिंग. मनी कंपेयर किया गया, मनी दैट अ क्रॉप विल ब्रिंग. हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स को किस चीज से कंपेयर किया गया है, पर्ल से, फ्रोजन पर्ल से. फ्रोजन पर्ल से, मोतियों से कंपेयर किया गया है. उसके किस चीज को मोतियों से कंपेयर किया गया, ब्राइटनेस को. वो बहुत ब्राइट थे, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल. अब है आपका लॉक्टस. लॉक्टस को किस चीज से कंपेयर किया गया है, प्लेग से, एक बीमारी से. अ प्लेग ऑफ लॉक्टस कहाँ है ना आपके बुक में, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस. और ये क्या है आपका, सेम ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे. एपिडेमिक. प्लेग क्या, प्लेग एक बीमारी है और उस बीमारी को कंपेयर किया गया है जो फ्लाइज हैं, कीड़ों के हमले से. तो इट्स एन एपिडेमिक, अ डिजीज दैट स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड. ऐसा एक बीमारी जो कि बहुत जल्दी फैलता है और सबको मरा हुआ छोड़ देता है. तो यहाँ पे ये सेम चीज़ होगा, यहाँ लॉक्टस होगा सेम. एन ऑक्स ऑफ अ मैन, किसको कंपेयर किया है, आदमी के एक आदमी के ऑक्स से. लेंचो को, लेंचो के किस चीज़ को कंपेयर किया, हार्ड वर्क को. हार्ड वर्क को कंपेयर किया गया है जानवर के मेहनत से. लेंचो की मेहनत को कंपेयर किया गया है. नाउ लिसनिंग पार्ट. लिसनिंग पार्ट में क्या है, लिसन टू द लेटर, रीड आउट फॉर योर टीचर ऑन द ऑटो टेप गिवन. वो लेटर नीचे दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और फिल करना है. देखिए लेटर क्या है, भट्ट हाउस
एड्रेस दिया हुआ है, डियर आरती हाउ आर यू, आई एम सॉरी आई हैवंट रिटन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक आई लास्ट send you a birthday card in the month of September 2005. We have just moved house. This is our new home. Sarah has just about started going to school. We have admitted her to Little Feet as this is very close to our new home. I am sitting here by the window sill writing to you. There is a slight drizzle outside and I reminded of good times we had together at Bangalore last year. Do write back, love, Jaya. इसमें कौन किसको लेटर लिख रहा है? आरती लिख रही है लेटर किसको? जया को। वो बता रही है कि कैसी हो तुम, मैंने बहुत समय से तुम्हें लेटर नहीं लिखा था, लास्ट टाइम बर्थडे कार्ड भेजा था सितंबर में, हमने अपना घर चेंज किया है। सारा उसकी बेटी वो नए स्कूल में जाना उसने स्टार्ट किया है, जिस स्कूल का नाम क्या है? लिटिल फीट है, जो कि उसके घर के नज़दीक है। और फिर वो कहती है कि मैं अपने विंडो के पास बैठ के लेटर लिख रही हूँ, बाहर में हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और ये बारिश हम मुझे बैंगलोर में बिताए हुए तुम्हारे साथ अच्छे वक्त की याद दिला रही है, पिछले साल जो हमने वक्त बिताया। डू राइट बैक, और वो कहती है कि मुझे चिट्ठी ज़रूर लिखना, और वो जया को चिट्ठी लिख रही है। ठीक है, तो क्या है? द राइटर अपोलोजाइजेज से सॉरीज बिकॉज राइटर जो है वो सॉरी क्यों बोलती है? बिकॉज शी हैज़ नॉट रिटन लेटर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो चिट्ठी नहीं लिख रही थी। द राइटर हैज सेंड दिस टू द रीडर। रीडर कौन है? जया। जया को चिट्ठी लिख रही है ना। आरती किसको चिट्ठी लिखी है? जया नहीं, जया किसको चिट्ठी लिख रही है? आरती को। तो रीडर कौन है चिट्ठी का? आरती। द राइटर सेंड इट टू द मंथ ऑफ। राइटर कब ये चिट्ठी भेज रही है? डेट देखिए आप चिट्ठी में, कब का है? जनवरी 2006, जनवरी में चिट्ठी भेज रही है। किस मंथ में? जनवरी में। द रीज़न ऑफ नॉट राइटिंग अर्ली, रीज़न क्या है नॉट राइटिंग अर्ली का? बिकॉज शी हैज़ मूव्ड हर होम, उसने अपना घर बदला है। शारा गोज टू, शारा कौन से स्कूल में जाती है? लिटिल फीट स्कूल में। देन नेक्स्ट इज हु इज राइटिंग टू हुम, कौन किसको चिट्ठी लिख रहा है? जया इज राइटिंग टू आरती। जया किसको चिट्ठी लिखी है? आरती को। वेयर एंड व्हेन वेर दे लास्ट टुगेदर, कब और कहाँ वो लोग साथ थे टुगेदर? दे हैड टुगेदर एट बैंगलोर लास्ट ईयर, वो लोग पिछले साल बैंगलोर में साथ थे। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द 2 poems in this chapter, Dust of Snow and Fire and Ice by Robert Frost. Thank you for watching this video.